ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر سفارتی رابطے توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں فوری روکی جائیں، جنگ بندی تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز کو مکمل بند کرنے اور باب المندب سمیت دیگر محاذ فعال کرنے پر بھی اتفاق کر لیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پر تیل کی عالمی منڈی میں قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں۔ WTI $6 اضافے سے $94 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت بڑھ کر $97 فی بیرل ہو گئی۔ مربان کروڈ آئل بھی $97 فی بیرل کی سطح کو چھو گیا۔ اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنے سے روک دیا، حزب اللہ بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطے کے بعد سوشل میڈیا پر اعلان۔ کہا، نیتن یاہو سے حوصلہ افزا گفتگو ہوئی ہے۔ اب کوئی اسرائیلی فوجی بیروت نہیں جائے گا۔ جو اسرائیلی فوجی راستے میں تھے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ ادھر امریکی ٹی وی سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے نہیں سنا کہ وہ مذاکرات معطل کر رہے ہیں۔ مذاکرات کی معطلی کی رپورٹ پر ایران سے کوئی نوٹس نہیں ملا۔ ہم خاموش رہ کر ایران کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ حقیقت میں ہم بہت زیادہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ایرانی اچھے جنگجو نہیں لیکن اچھے مذاکرات کار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، اس وقت خاموش رہنا بہتر ہے۔ انتظار کروں گا کہ ایران ہمیں منظور شرائط پر معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ عباس اراغچی نے علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ اسحاق ڈار کا جنگ بندی برقرار رکھنے اور موجودہ مفاہمت کو محفوظ بنانے کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے بھی رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ نے ترک منصب حاقان فیدان سے بھی رابطہ کیا۔ عباس اراغچی کی فرانسیسی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی فوج کے زیر استعمال فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حملے کے دوران مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے فضائی اڈے کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ اس سے قبل امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں واقع ریڈار اور ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز پر حملے کیے گئے۔ یہ کارروائیاں ہفتے اور اتوار کے روز جزیرہ قشم اور گوروک شہر میں کی گئیں۔ امریکی کارروائیاں ایران کی جانب سے MQ-9 ڈرون کو تباہ کرنے کے جواب میں کی گئیں۔ دوسری جانب کویتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام کے ذریعے دشمن ملک کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ کویت کی فضاؤں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دیں اور فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل کا لبنان کے 20% حصے پر قبضہ۔ فضائی حملے بھی جاری۔ بمباری میں شامی پناہ گزین خاندان کے 9 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان کے تاریخی قلعے پر قبضہ اور بدترین فضائی حملوں کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا لبنان کے صدر اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے رپورٹر کے مطابق مارکو روبیو نے لبنان اور اسرائیل کے رہنماؤں سے نئی جنگ بندی تجویز پر بات چیت کی۔ امریکہ نے تجویز دی کہ پہلے حزب اللہ اسرائیل پر حملے روکے، پھر اسرائیل کشیدگی روکے گا، جبکہ اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ کا امریکہ سے اسرائیلی حملے پہلے رکوانے کا مطالبہ، جبکہ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے تاریخی بیوفورٹ پر قبضہ کر کے گولانی بریگیڈ کا جھنڈا لہراتے ہوئے تصاویر جاری کر دیں۔ صہیونی فوج نے کہا کہ حملوں کی شدت میں اضافہ کریں گے۔ جنگ بندی ختم ہوئی تو اس کا تمام تر ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی لبنان سمیت ہر جگہ پر لاگو ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ کسی ایک محاذ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی تمام محاذوں پر خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا، ایران کی ناکہ بندی اور لبنان میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے واضح ثبوت ہیں۔ ہر عمل کا حساب
वफाक कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करे। मैं चाहता हूं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं, आप करें। जीबी के गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं। इस इलेक्शन में फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। यकीन है कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब, कहा कि किसी से कोई हिमायत नहीं मांगी, न कभी ये कहा कि सिलेक्ट किया जाए। दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। अब इनकी नई सोच है कि ये प्रोग्राम सूबों के हवाले करें। सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम को बंद करना है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन उसी वक्त होने चाहिए जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हों। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दौरे के लिए एनओसी जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुख्तलिफ अजला में जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और राबितों का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को शेड्यूल है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल नहीं बल्कि जमहूरियत के तयन का फैसला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हर शहर, कस्बे और गांव तक बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरियों से अपील है कि वो इस जमहूरी जदोजहद में हमारा साथ दें। हमारे साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक का फैसला अवाम पर छोड़ते हैं। बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कालास की मुलाकात। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। खलीजी खित्ते में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की यूरोपीय यूनियन की जानिब से भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया के इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा के साथ शेयर किया। तिजारत और सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने का ख्वाहां है। पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया में तवानाई का शदीद बहरान है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंग बंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कालास की अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर पजीर आई। पाकिस्तान के दौरे पर बेहद खुशी का इजहार भी किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। काया कालास ने कहा कि पाकिस्तान को अपने और अपने अवाम के हक का दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती थी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान को हक़ दिफा हासिल है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रैटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई जहत दे सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि यूरोपीय यूनियन की क़यादत की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित काबिल कदर हैं। भारत के साथ जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत और सिंतास मुआहदे पर यूरोपीय यूनियन की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। अमरीका ईरान जंग में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की सालिसी की भी हिमायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी की मज़म्मत को सराहते हैं।
पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का मरकजी दफ्तर कराची मुंतकिल करने की हिदायत। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की दरख्वास्त पर गुजरात में पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला है, तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मज़ीद इक़दाम करेंगे। FBR 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस निपटाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारा मिशन है और इज्तिमाई काविशों से इस मिशन की तकमील यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी सरमायाकार जॉइंट वेंचर्स के जरिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। वफ़द की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। आइंदा माली साल में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान है। वफाकी बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 3138 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ सर फहरिस्त होगा। सिंध के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती प्रोग्राम 564 अरब, जबकि बलूचिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल से तरक्याती बजट का मजमूई हजम का तखमीना 2478 अरब है। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता 8 साल से वफाक का तरक्याती बजट 1000 अरब पर खड़ा है। सूबों का तरक्याती बजट 1000 से बढ़कर 3000 अरब तक पहुंच चुका है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि वफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आता जा रहा है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। आइंदा बजट में वजारतों के मंसूबों के लिए 4000 अरब मांगे गए हैं। IMF ने पाकिस्तान की बरामदात के लिए रिकॉर्ड सतह का हदफ पेश कर दिया। एक साल में पाकिस्तानी बरामदात में तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स इजाफे का इम्कान है। बरामदात के बढ़ने के बावजूद तिजारती खसारा भी मजीद बढ़ने का खदशा है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत का हजम नए माली साल में मजीद वसी होने का इम्कान है। नए माली साल में बरामदात पहली बार 35 अरब डॉलर की हद को अबूर कर सकती हैं। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई में मजीद बेहतरी की तवक्को है। बजट मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी के बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि MQM के MNAs और MPAs के इजलास में ये मामला रखा गया। MQM के MNAs और MPAs ने मामले पर कोई एतराज़ नहीं किया। बजट से पहले पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाकर मामले पर बातचीत की जाएगी। हम ना तो MQM के इत्तेहादी हैं, ना ही वफाकी हुकूमत के। सिर्फ जमहूरी अमल के तसलसल के लिए वफाकी हुकूमत की हिमायत कर रखी है। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मसाइल को सियासी रंग देती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पानी की कमी के हवाले से सिंध हुकूमत पहले ही इरसा को खत लिख चुकी है। कराची की सूरत हाल इस वक्त ख़राब होना शुरू हुई जब शहर में लसानी सियासत की बुनियाद रखी गई। MQM वफाकी हुकूमत के मामलात हमारे खाते में न डाले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उमर अयूब को फैसले से आगाह कर दिया। उमर अयूब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद किए गए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उमर अयूब को बताया कि 11 फरवरी को दरख्वास्त ज़ेर गौर आई। तफसीली मुशावरत के बाद दरख्वास्त को मुस्तरद करने का फैसला किया गया।